Yes, welcome again in maths lesson, exercise number 3.5 and question number 2. For which values of A and B, A और B की कौन सी values के लिए does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions? Infinite number of solutions देता है A और B की कौन सी values के लिए? आप देखें इसमें A और B नहीं है, इसमें A और B है second equation. ये first equation है, ये second equation है. थोड़ा पास्ट में जाएं. जो प्रीवियस लेसन्स थे उनमें आपने 3 कंडीशंस देखी थी. देयर आर 3 कंडीशंस फॉर जज द टाइप ऑफ सॉल्यूशंस. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. This condition is applicable when pair of linear equations have unique solution and type of graph is intersecting lines. This is the case of unique solution and type of graph is intersecting lines. We have seen in previous lessons. The second case is a1 upon a2 equals to b1 upon b2 and equals to c1 upon c2. When both ratios are equal, then we want to search third ratio. Third ratio के भी हम search करते हैं. And when 3 ratios are equal, this case is of infinite number of solutions. Infinite number of solutions. And type of graph is coincident. And this is the first case, this is the second case. And both cases are called consistent type of solutions. And one more case is third case, and this is a1 upon a2 equals to b1 upon b2 and not equals to c1 upon c2. This is the case of no solution. No solution. And type of graph is parallel lines, because this system has no solution. Parallel lines. And this is the case of inconsistent. This is the case of consistent, and this is the case of inconsistent solution. Now come to the question. This is the case of infinite number of solutions, and we will apply the formula number 2. This is the formula number 2. The case of infinite number of solutions. And we have to find the values of A and B. हमें A और B की values को find करना है. Because this is the case of infinite number of solutions, you have to write this case. A1 upon A2, this is the formula for infinite number of solutions. This is value of A1, this is value of A2. This is value of B1, B2, the value of C1, C2. दूसरी वाली इक्वेशन में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको. A2 की वैल्यू ये पूरी है, B2 की वैल्यू ये पूरी है, y को छोड़ के y का कोफिशिएंट है. Y कोफिशिएंट इज कॉल्ड इन सेकंड इक्वेशन B2. दिस इज B2 and this is the value of constant called C2. Put here values. This is the first equation's value and these are the second equation's value. 2 upon A2 gives A minus B. There is no need to write bracket. If you want, you can write.
B1 3, B2 A plus B. I'm using the brackets as it is, as shown in the question. C1 7, C2 3A plus B minus 2. This is the condition. We have to put these values: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Now make two equations, because there are two unknown numbers, only two unknown numbers, A and B. So when in algebraic statement, two unknown numbers, there are two unknown numbers, we have to make two equations by this expression. इस एक्सप्रेशन से हमें दो इक्वेशन बनानी होंगी और उनको सॉल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी. आप सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड काम में ले सकते हैं, आपकी मर्जी हो जो मेथड काम में ले सकते हैं. तो जब इक्वेशन बनाते हैं तो ये तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, तो दो को आपस में लेते हैं हम. एट वंस टू वैल्यूज लेते हैं, तो एट वंस में फर्स्ट और टू, ये फर्स्ट और सेकेंड वाला जो यहां दिख रहा है एक्सप्रेशन, इनको ले रहा हूं. 2 अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू 3 अपॉन ए प्लस बी, क्योंकि ये आपस में सारी वैल्यूज इक्वल हैं. ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, आपस में तीनों इक्वल हैं. अब इनको आप जानते ही हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करें, पहले जो बिगर डिजिट दिखता है उसको करें तो अच्छा रहेगा. तो 3a माइनस 3b आपको दिख रहा होगा. 3 को मैंने इंटू कर दिया इससे. आप चाहें तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं ऐसे, 3a माइनस बी इक्वल्स टू 2a प्लस बी. मैंने यहां डायरेक्ट कर दिया, इक्वल्स टू 2a प्लस 2b, 2 से दोनों साइड, और यहां 3 से दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया, यहां लिख दिया. क्रॉस मल्टीप्लाई से एक स्टेटमेंट सीधा सीधा आ जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर खत्म हो जाते हैं. दोनों वेरिएबल्स हैं, दोनों इस साइड में डाल दीजिए. अगर आप एलिमिनेशन से करते हैं और अगर सब्स्टिट्यूशन से करते हैं तो एक वेरिएबल इधर, एक वेरिएबल इधर, यूं भी कर सकते हैं. तो चलिए, एलिमिनेशन हमारे लिए सरल है, तो 3a माइनस 2a कर दिया और 3b ऑलरेडी हियर एंड माइनस 2b इक्वल्स टू 0. दिस गिव्स a minus 5b. a minus 5b. For substitution, you can write a equals to 5b. This is our first equation. ये फर्स्ट इक्वेशन कहां से आई? ये इन दोनों को इक्वल टू में लिखा था हमने, इन दोनों को. अभी इसको यूज ही नहीं किया, और जब तक इसको यूज नहीं करेंगे तब तक सेकंड इक्वेशन नहीं आएगी, और सेकंड इक्वेशन नहीं आएगी तो ए और बी की वैल्यूज नहीं निकलेंगी. तो सेकंड इक्वेशन को भी क्रिएट करना है. अब सेकंड इक्वेशन दो टाइप से आप क्रिएट कर सकते हैं. या तो इन दोनों को इक्वेलिटी में लिखें और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे ही निकाले एक इक्वेशन, या इसको और इसको भी कर सकते हैं. ध्यान रखना, शुरू में तो ये दोनों, फिर ये वाला फर्स्ट रेशियो और थर्ड रेशियो को आपस में इक्वलिटी में लिख दें, या फिर सेकंड रेशियो और थर्ड रेशियो, दीज आर द रेशियोज, इस रेशियो और इस रेशियो को इक्वल टू में लिख दें. ये आपकी मर्जी है, लेकिन करना पड़ेगा. फर्स्ट और सेकंड को जब कंपेयर कर दिया, इक्वल्स टू में लिख दिया, तो फर्स्ट और थर्ड को करें या सेकंड रेशियो और थर्ड रेशियो को इक्वल्स टू में लिखें. ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है. तो मैं कर रहा हूं, ये सिंपल लग रहा है थोड़ा सा. 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू दिस, मतलब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर रहा हूं मैं, इक्वल्स टू में लिख रहा हूं. देखिए यहां
2 अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू 7। इसका ये नीचे डिनोमिनेटर थोड़ा सा लार्जर है, ध्यान रखना है इसका। 3a प्लस बी माइनस 2, ये b है। पहले ये बिगर डिजिट है, इसको इंटू करें, 7a माइनस 7b। अब इधर 3 2 जा 6a प्लस 2b माइनस 4। ये 2 को इधर तीनों से इंटू करना है, तीनों टर्म्स से ट्रांसफर करें, इसको उधर ही छोड़ देना, 4 को कांस्टेंट नंबर है, इसको इधर लाए तो 7a माइनस 6a माइनस 7b माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 4। दिस गिव्स 7a माइनस 6a पॉजिटिव a और माइनस 7b माइनस 2b माइनस 9b माइनस 4। ये दो इक्वेशंस हैं। अब इन दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर ले, बिल्कुल सिंपल है। a माइनस 5b इक्वल्स टू 0, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। By subtraction, you have to write here subtraction because coefficient of a are equal but signs are same. So we have to write by subtraction. घटाने पर तो ये प्लस का माइनस, माइनस प्लस, और ये जो लोअर टर्म्स हैं उनके साइन चेंज करते हैं, बाय सब्ट्रैक्शन लिखते हैं। लोअर टर्म्स के लोअर जो स्टेटमेंट आता है, लोअर जो हमारा ये आता है स्टेप, इसके इक्वेशन, इसके साइन चेंज करते हैं। तो ये प्लस और माइनस सेम है, 1 1 है तो 0 हो गया, 0a मीन्स खत्म इसका मामला। तो प्लस 9b हियर यू हैव टू काउंट हियर प्लस साइन, तो प्लस 9b माइनस 5b वी विल गेट 4b, ओके, 4b इक्वल्स टू हियर पॉजिटिव साइन 4। व्हेन वी cancel them, b equals to 4 upon 4, you can write 4 upon 4 gives 1. Value of b is 1. Value of b is 1 gives here. Put this value in equation first. You should to put the value in the simplest equation. आपको simplest equation में value रखनी चाहिए। तो ये equation थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, ये इक्वेशन छोटी है, बिल्कुल इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो इसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा और आप इजीली b की वैल्यू पहले आई है। b की वैल्यू पहले आने का कारण क्या है कि हमने a को काट दिया, a कैंसिल हो गया, a कैंसिल होने के बाद b जीवित बचा, अलाइव यही था तो अलाइव की वैल्यू निकल गई। अब जो हमने बीच में एलिमिनेट किया था तो यहां लिखेंगे पुट b equals to 1 in equation 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू रखेंगे b equals to 1, तो a minus 5 here b in multiplication, 5 into 1 equals to 0, तो a minus 5 equals to 0, a equals to positive 5। राइट साइड में डाल दें इसको, तो नीचे लिख दें यहाँ a equals to 5। यहाँ आंसर भी देना आपको उतना ही जरूरी है जितना क्वेश्चन सही स्टेप से सोल्व करना। b इक्वल्स टू 1, ये दोनों कंबाइंड आपका आंसर मिलेगा। ये हाफ आंसर है, या हाफ आंसर है, इनको एक ही जगह पर आपको प्लेस भी करना है और शो भी करना है और उनको डार्क बोल्ड भी करके दिखाना है कि ये मेरा आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप अपनी होमवर्क की कॉपी में सारे करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।